as well. So physical quantities are divided into two types, which is based and derived quantities. Divide. Base quantities are those which could be measured directly, and derived quantities are those which depends on Base other quantity. quantities भी कह सकते हैं और base quantities भी कह सकते हैं for their measurement. There are 7 base quantities that could be directly measured, and they have 7 base units alongside with it. What are those 7 base quantities? Mass, time, length, Yes, intensity of light, temperature, uh, yes, electric current, and amount of substance. Okay, so these are the 7 and amount of quantities that substance. are base quantities which could be measured directly, and they have respective 7 base units as well. Length is measured in Meter, meters, mass is measured in kilograms, time is measured in kilograms, seconds, current is seconds, measured in the amperes, amount of amp, substance in mole, ampere, and intensity of light is in candela, and temperature is measured in uh, Kelvin, Kelvin. Kelvin. यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट के अंदर एस्टिमेशंस को डिस्कस किया हुआ है कि पॉसिबल एस्टिमेशंस जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास एवरीडे रूटीन के अंदर जो होती हैं माइक्रोस्कोपिकली एंड मैक्रोस्कोपिकली उन्होंने डिस्कस किया हुआ है एंड यहाँ पर उन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है. An estimation is a rough, educated guess to the value of a physical quantity by using prior experience and sound physical meaning. Estimation of lengths के अंदर जाए, mass के अंदर जाए, time के अंदर, you do not need to memorize them as it is. Once you will review these the table and you might have a picture of that in your mind कि अच्छा ये quantities हैं तो उनका possible masses जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं. कुछ तो हमारे पास आगे कैलकुलेशंस के अंदर जाएंगे भी, एंड देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज जो आपको वैसे ही अपने उसके अंदर, जैसे ये लाइट ईयर हो गया 10⁻⁶ के अंदर, डायमीटर ऑफ गैलेक्सी 10⁻21, यूनिवर्स की जो हमारे पास होती है 10⁻⁶, ये यूनिट्स ऑफ लेंथ्स के अंदर है. मासेस के अंदर आपने ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा हुआ है 9.1 × 10⁻31 एंड 1.6 × 10⁻27, एंड जो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम मास एंड इलेक्ट्रॉन इज 1/184 टाइम्स 0 जो है स्मॉलर देन. उसकी एक्चुअल वैल्यूज जो होती हैं वो 9.1 × 10⁻31 फॉर इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड 6.625 × 10⁻27 एंड 6.627 करके स्लाइटली डिफरेंट होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो जो स्टार्ट में है उन्होंने बेसिक एस्टिमेशंस के अंदर ही बात की है कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज इन आवर एवरीडे रूटीन. फिर उसने ड्राइव्ड यूनिट्स को क्या हुआ कि दैट डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे उसने फोर्स का यूनिट डिस्कस किया हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन. Acceleration is velocity into time and velocity is displacement over time. So the derived quantity in terms of base unit for force is newtons kilograms per meter square. Similarly अगर हम लोग वर्क की बात करें और उनका बेसिक उसके अंदर यूनिट्स के अंदर लेके जाएं तो फोर्स का यूनिट अभी अभी हम लोगों ने क्या क्या होता है किलोग्राम meters per second square, and displacement is also a unit of length, so it will be kilogram meter square per second square. उसका derived unit हमारे पास क्या होता है joule होता है. Yeah. So certain at examiner could ask you a question कि जी आप इस particular quantities को in terms of base units discuss करें या base quantities के अंदर लिखें. तो quantities तो हमारे पास ये आ जाएंगी, units हमारे पास ये respectively आ जाएंगे. बाकी जो डायमेंशन आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, डायमेंशंस बेसिकली हमारे पास जो ये होती हैं एक जो है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डायमेंशन एंड अ यूनिट. जो डायमेंशन होता है हमारे पास ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है of any quantity, that it will let you know कि what kind of a quantity it is, whether it's kind of a mass, is it a kind of length, time type something quantity है और so forth. Whereas जो unit होता है वो quantitative analysis होता है किसी भी physical quantity का. तो dimensions जो है normally it is written in the brackets or
मास के लिए वो m होता है, लेंथ के लिए वो l होता है, टाइम के लिए वो कैपिटल T होता है. Since I have told you before कि dimension could help us in three ways. First के to check whether the formula is correct or not. Second हम लोग उससे यूनिट ड्राइव कर सकते हैं. थर्ड हम लोग ये जो है ये चेक कर सकते हैं कि जो है जो क्या कहते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द क्वांटिटी जो है वो सेम उनके यूनिट्स हैं भी कि नहीं. यूनिट्स निकाल भी सकते हैं, यूनिट डेवलप भी कर सकते हैं. फिजिक्स के जो डायमेंशंस हैं बेस क्वांटिटीज की, दे आर एज फॉलोज. मास, लेंथ और टाइम का मैंने आपको बता दिया था. करंट के लिए आई यूज होता है, टेम्परेचर के लिए थीटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जे, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन. वी रेयरली यूज फॉर करंट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. बाकी जो एम एल एन टी है ये बहुत जो है वो मतलब थ्रू आउट द कोर्स हमारे पास जो है वो यूज होंगे. Yes, sir. लेट मी सी इफ देयर, हाँ ये उन्होंने ये चेक किया हुआ है जो पहले है कि एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस हमारे पास होते क्या हैं. होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन के ऑन बोथ साइड इज देयर सेम यूनिट्स और नॉट, टू ड्राइव अ पॉसिबल फॉर्मूला. एंड यूनिट उन्होंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ, बट दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी कैन टेक इनटू अकाउंट व्हेन वी आर यूजिंग डायमेंशंस. यू वर सेइंग समथिंग? No, sir. Okay, you might have studied the equation of motion in metric. VF is equals to VI plus 80. New syllabus के अंदर तो अब it's not the part of the new syllabus, but previously you Yes, sir. might have studied VF is equals to VI plus 80. Now to check the Yes, sir, I homogeneity have. of the equation, dimension could help us in a way कि if both side of the equation have the same units, then the equation is right. So VF basically final velocity, velocity का unit हमारे पास क्या होता है? Meters per second. मीटर्स पर Correct. सेकेंड. एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. एंड टाइम. फॉर नाउ आई एम राइटिंग दिस लाइक, आई एम राइटिंग द यूनिट लाइक दिस, बट बेसिकली हम लोग डायमेंशंस के लिए सिर्फ उनकी डायमेंशन रिस्पेक्टिवली यूज करते हैं. मीटर का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है? एल. एंड टाइम का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है? टी. सो T. हेयर वी हैव एल ओवर टी. सो अगर हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड के ऊपर भी विल गेट द सेम डायमेंशन, सो दैट मींस इक्वेशन इज राइट. सो अगर हम देखें तो यहाँ से एल ओवर टी सॉरी प्लस अगेन एल ओवर टी स्क्वायर इनटू टी. टी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा. वी हैव एल ओवर टी, एल ओवर टी, एल ओवर टी. When we'll add them, so we'll have 2L over T. Since number की कोई dimension नहीं होती है, we can skip that. So hence we have same units on both sides, same dimensions on both sides. So the unit formula is correct. Similarly, if you remember, you might have done average force is equals to mv over t. Do you recall this? Momentum के अंदर क्या था? Newton's second law and momentum. Yes, sir. ठीक है. So we know that Please, कि sir. f का dimensions हमारे पास क्या होगा? m l t minus 2 kilogram meter per second square. So if we get the same Yes, sir. dimensions on the other side as well, so we'll have the same value. मतलब the formula homogeneity of the equation is correct. So यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? m, v has a unit of l t minus 1 and t minus 1 as again. So we'll have m l t minus 2. Hence we have the same formula dimension on either side. So the formula is correct. So dimensions help us to check the homogeneity of the equation. Also, it helps us to find the formula. फॉर्मूला के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज में वो हेल्प आउट नहीं करेगा. बाकी जो है तमाम चीजें इट कुड हेल्प अस आउट कि जी उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं. लाइक यहाँ पे उन्होंने हमें डिस्कस किया हुआ है कि जी लेमडा इज इक्वल्स टू एच. प्लैंक्स कांस्टेंट के उसके अकॉर्डिंगली उसने किया हुआ है कि लेमडा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू एच. एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है हमारे पास, एम मास एंड वेलोसिटी इज वेलोसिटी. सो टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दिस कि उसमें पॉसिबल क्या आएगा, तो उन्होंने क्या कहा कि वेवलेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है?
रिकॉल द यूनिट लैम्डा ऑफ होता है। वेवलेंथ। यूनिट मीटर्स होता है हमारे पास, हाँ, यस सर। ठीक है, मीटर्स। क्योंकि वो लेंथ होती है तो उसका यूनिट मीटर्स होता है। यस हमें सर। एच, एम एंड वी के यूनिट जो है डायमेंशन रिस्पेक्टिवली निकालने हैं। सो एच जो हमारे पास यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच इज इक्वल्स टू E is equals to HF होता है हमारे पास एक फॉर्मूला दैट यू माइट हैव नॉट स्टडीड, बट उन्होंने ये एग्जांपल वहां पे ले ली भी है। स्टूडेंट हैव नो आइडिया कि उसके क्या यूनिट होते हैं, बट उन्होंने यहाँ से ले लिया। बट इफ यू फोकस ऑन दिस, यू कुड गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट कि E इज इक्वल्स टू एच एफ के फॉर्मूला के अंदर H किसके बराबर आ जाएगा, E ओवर F के। हाँ। तो आई एम ओनली राइटिंग दिस फॉर्मूला, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। उन्होंने एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है, आपको वो जो भी एग्जाम्पल देंगे वो प्रोबेबली जो है उनके यूनिट्स एंड सॉरी उनके फॉर्मूला से आप लोग फेमिलियर हो गए समहाउ, बट प्लैंक्स कांस्टेंट इज समथिंग दैट यू आर नॉट फेमिलियर एट दिस लेवल। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द फॉर्मूला। E is equals to HF. E is the energy and F is the frequency. You're familiar with that. And frequency किसके इक्वल होता है, 1/, टाइम पीरियड के, एंड टाइम पीरियड का टाइम यूनिट पीरियड। हमारे पास क्या होता है। तो इसका सेकंड। हमारे पास डायमेंशन क्या बन जाएगा, T-1। वन। ई किसके इक्वल होता है हमारे पास, लेट से अगर हम उसको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रखें तो हमारे पास डायमेंशंस क्या बनेंगी, M L T-2। और एच के यूनिट क्या होते हैं, वो भी एल के ही होंगे, तो एल स्क्वायर टी एल ही माइनस होगा टू सर। बन जाएगा। ठीक है, तो जी सर। अब अगर हमें एच का डायमेंशन निकालना है तो एच किसके इक्वल आ जाएगा, ई ओवर एफ के। ई के हमारे पास डायमेंशन क्या है, ML² T-2। एंड एफ के डायमेंशन हमारे पास क्या है, T-1। when it will go in the numerator, तो -1 and ये एक cancel out हो जाएगा and we'll have the unit of dimension. I'm continuously saying unit but just get the idea, I'm basically mean the dimensions. तो अब यस मैंने सर। ये इसलिए करवा दिया कि आप यू आर नॉट फेमिलियर विद द प्लैंक्स कांस्टेंट। बाकी मास और वेलोसिटी से आप फेमिलियर हो। मास की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, एम, और वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, LT-2। पावर्स यहाँ पे ए बी एंड सी वेरिएबल्स को यूज किया हुआ है बिकॉज वी डू नॉट नो कि किस पावर के अंदर वो पर्टिकुलर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास। अब इस साइड पे अगर हम लोग देखें तो डायमेंशंस बेसिकली डील किए जाते हैं कि दोनों साइड्स के ऊपर जो डायमेंशंस होती हैं उनकी पावर को, जैसे मैथ्स में मैच करते थे ना हम लोग कि इंडेक्सेस के अंदर नॉर्मली हम लोग यूज करते थे कि जी हमें एक्स की पावर फाइंड आउट करनी है, तो इफ वी हैव द सेम वेरिएबल्स ऑन ईदर साइड तो हम उनकी पावर्स को मैच करते थे, अपना आंसर निकाल लेते थे। यू रिकॉल दैट पार्ट मैथ्स के अंदर। हेलो। सॉरी, कैन यू हियर मी। यस सर, वो थोड़ी देर के लिए आवाज आपकी कट गई थी। यहाँ पे ना सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है एंड एम की हमारे पास पावर क्या बन गया, A+B। एल का ए पावर क्या प्लस बी। बन गया, 2A+C। एंड टी की पावर क्या बन गया, -A - C। ठीक हो गया। माइनस सी। अब हमने इक्वल की दूसरी साइड पे उनकी वैल्यूज को कंपेयर करना, सिंस m की पावर ऑन द अदर साइड वी हैव 0, तो 0 इज इक्वल टू A+B हो जाएगा। l की पावर 1 है तो 1 इज इक्वल टू 2A+C हो जाएगा। एंड t की पावर 0 है तो 0 इज इक्वल टू -A+C हो जाएगा। अब हमने उन्हें इक्वेशन के अंदर पुट करके a b एंड c की वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करनी। ही स्टार्टेड विद 2A+C, तो यहाँ से एंड सेकेंड इक्वेशन a इज इक्वल टू -C, तो -A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव c आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, b आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे उसकी वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली पुट करें, if यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास b इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ओके, इसको ऐसे जी कर सर। लो, सिंपल मैथ्स रूल कर लो, A+B -A - C इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू B - C इज इक्वल्स टू 0 एंड B इज इक्वल्स टू क्या आ गया, C। A जी हो गया। is according to this equation -A is equals to C, which means के -A is also equals to B। अब किसी एक इक्वेशन से हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जानी चाहिए। अगर
हम किन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक की वैल्यू आ जाओ। 2a is equals to 1 minus c and a is equals to 1 minus c over 2। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें इनटू दिस इक्वेशन तो माइनस ए, सॉरी ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस सी ओवर 2 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इसको रीअरेंज किया, आई मेड ए द सब्जेक्ट और मैंने ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। So I will have minus 1 plus c over 2 minus c is equals to 0, and minus 1 plus c minus 2c over 2 equals to 0, and minus 1 plus c minus 2c is equals to 0 cause ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा, and minus 1 minus c is equals to 0 and minus 1 is equals to c। c की वैल्यू आ गई है हमारे पास, जी सर। c equals to minus 1 एंड हमारे पास ये इक्वेशंस ऑलरेडी डेवलप थी। सो ए किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो ए किसके इक्वल आ -1 जाएगा 1 के, 1। और बी इज इक्वल्स टू सी था तो बी इज इक्वल्स टू -1 एंड सी इज इक्वल्स टू -1। अब हमने ये सारी पावर्स पुट कर देनी है कहाँ पे, ए बी एंड सी की वैल्यूज कहाँ पे पुट कर देनी है, इसी इक्वेशन के अंदर। बिल्कुल। ठीक है, सो एम की पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, उसने पुट नहीं किया हुआ, लेट मी पुट दैट फॉर यू। Let me use the area if I have any area left. Okay, let's use this area by just putting the powers here. M की पावर क्या आई थी हमारे पास, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, +1 एंड B की वैल्यू क्या है, -1। नेगेटिव। L के अंदर आ जाए तो 2 into 1 प्लस इंटू -1 फॉर L की वैल्यू आ जाएगी, एंड T के अंदर हम लोग आ जाए तो ए की वैल्यू 1 थी तो माइनस है तो -1 हो जाएगा, एंड सी की वैल्यू क्या थी, -1, तो माइनस इंटू -1। -1, तो 1 -1 0 हो जाएगा, जी सर। एम की पावर 0 हो गया, और एल की पावर हमारे पास क्या आ गई, 2 1। इंटू 1 2 हो गया, 2 -1 इज 1, एल की पावर 1 हो गई हमारे पास, टी की पावर भी 0 हो गई, तो हमारे पास सिर्फ 0 एल भी। की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास ऑन दी अदर साइड क्या रह गया, सिर्फ एल की पावर 1। ठीक है, जी सर। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप, एक तो होमोजेनिटी हमारे पास चेक हो गई कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या आंसर आ रहा है, एल, और इधर ऑलरेडी एल था। अब हम जब इसमें इस फॉर्मूला के अंदर ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करेंगे तो एच ए की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आ गया, -1। सो लेमडा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू एच ओवर एम इंटू सी, सॉरी वी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो उन्होंने आगे लगा के दिखाया था, एच ए की पावर 1, बी की पावर -1, सी की पावर -1, सो लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट टू एच ओवर एम। तो फॉर्मूला के अंदर रिलेशनशिप हमें ये पता लगा कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम भी कह सकते हैं, एच ओवर एम वी, और उसके अंदर लास्ट में उन्होंने डायमेंशंस की जो हैं कुछ लिमिट्स डिस्कस किए हुए हैं कि दीज आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फिजिकल क्वांटिटी having the same dimensions. For example, if the dimensional formula of physical quantity is ml square t minus 2, it may be work, energy or torque. We cannot say for sure. Dimension cannot help us to जो है be sure कि what quantity is this. Because if you remember मैंने आपसे क्या बताया था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है उसके अंदर। सो पहला डायमेंशंस की लिमिटेशंस क्या है, इट कैन नॉट टेल यू फॉर श्योर कि वेदर इट इज वर्क, एनर्जी और टॉर्क, और सबके यूनिट्स क्या होते हैं,
सेम होता है, डायमेंशन सॉरी सेम होती है। Dimension analysis cannot be used to drive a formula containing trigonometric functions, exponential function और logarithm function। अभी भी हमारे पास जो है, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अंडर रूट आ रहा है या कुछ भी, अगर पावर -1/2 आ जाती है, इट मीन्स उसका क्या आ रहा था हमारे पास, अंडर रूट। बट हम लोग ये नहीं, डायमेंशन से ये नहीं लगा सकते कि cos थीटा साथ में आना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथम फंक्शन है। मैथ्स में आपने ये ध्यान चीजें पढ़ी हैं। पावर ई की पावर में आ रहा है हमारे पास, या लॉग की फॉर्म में आ रहा है, या नेचुरल लॉग आ रहा है साथ में फॉर्मूला के अंदर के नहीं। तो हम कंप्लीटली नहीं बता सकते उसको डायमेंशन एनालिसिस में। कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशनलेस कांस्टेंट व्हेन ड्राइविंग अ पॉसिबल फॉर्मूला। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी होती हैं? यूनिटलेस कांस्टेंट होता है हमारे पास, आगे जाके आप पढ़ोगे इसी चैप्टर के अंदर, नॉट इन दिस चैप्टर, इन दिस ग्रेड, के देयर आर सर्टेन कांस्टेंट्स जिनके कोई यूनिट्स हमारे पास नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली डायमेंशन एनालिसिस उसमें भी हमें हेल्प आउट नहीं कर सकता। एंड लास्ट, dimension analysis does not always prove that a relationship is physically correct, although relationship is dimensionally correct. However, a dimensionally wrong equation is always wrong. तो हम 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि whether the formula is correct or not, but if डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए होमोजेनिटी प्रूव नहीं हुई तो वो कंफर्म कर सकता है कि जी ये फॉर्मूला करेक्ट है। ओके, Yes, sir. so for the long question we need to remember these limitations, and dimension analysis से कैसे you can check the homogeneity of the equation as well as the force. For tomorrow inshallah I'll walk you through the theory। ये वही पॉइंट उन्होंने पहले पहले डिस्कस किया हुआ है कि dimension denotes the qualitative nature of a physical quantity. For example, length, width, height, distance, displacement, radius, etc. all are measured in meters because of having the same nature. So the dimensions are same. तो qualitative का meaning में भी आपको इस example से समझ में आ गया होगा। It only explains the qualitative nature of the quantity, कि वो mass है, वो टाइम टाइप क्वांटिटी है, या वो लेंथ टाइप क्वांटिटी है। बिकॉज अगर आप देखो तो हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस हैं सब चीजें डिफरेंट, बट इन सबके यूनिट्स क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। हाइट भी मीटर्स में लेते हैं, डिस्टेंस भी मीटर्स में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर्स के अंदर लेते हैं। So dimension of a physical quantity is often represented by capital letters enclosed in a square bracket. Dimensions are base quantities given in the table. Dimensions of derived quantities are obtained by multiplication or division the dimension of base quantities, that is from which these quantities are derived. For example, the dimension of area, area का dimension क्या बनेगा? Sir, L square होगा ना सर? एल स्क्वायर, cos मीटर इंटू मीटर्स होता है तो एल स्क्वायर बन जाएगा। वॉल्यूम का क्या क्या Yes, sir. बनेगा? एल L क्यूब। cube होगा सर. वेलोसिटी का क्या बनेगा? एल टी -1। एंड एक्सेलरेशन का क्या बनेगा? एल टी -2। Thus dimension give the relationship of given physical quantity with the base quantity, that is mass, time, length, and etc. There are following essential terms which are used in dimension analysis. First is dimensional variable, dimensional constant। जैसे 2 हो गया, ठीक है। एल इसमें हमारे Yes, पास sir. क्या होगा? एल की पावर वेरिएबल्स में आएगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डायमेंशंस एंड हैव वेरिएबल मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड डायमेंशन वेरिएबल। सम डायमेंशन वेरिएबल्स आर लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी एंड एक्सेलरेशन। Dimensional constant, those physical quantities that have dimensions and constant magnitude are called dimensional. Some example of dimensional constants are Planck's constant, gravitational constant, speed of light in vacuum। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद है आप लोगों ने, नाइन्थ में पढ़ा था? Yes, sir. एफ इज इक्वल टू जी एम एफ ओवर आर स्क्वायर। Yes, sir. स्पीड ऑफ लाइट की क्या वैल्यू होती है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर Great. सेकंड। Yeah. आइडियल गैस कांस्टेंट आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा। डायमेंशनल वेरिएबल्स, these physical quantities that have no dimensions and have variable magnitudes are called dimensional variables. Some of the examples are plane angles, solid angles, strain and coefficient of friction। coefficient of friction आपको याद होगा, आपने एफ सी वाला जो coefficient था। और ये जो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, बेसिकली आप इस चैप्टर में तो उन्होंने डिस्कस किया हुआ,
बट हम लोग जब फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जाते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आती हैं। दैट वाज नॉट मेंशन्ड हियर, तो मैंने उसको बॉदर भी नहीं किया कि हम उसको करें, बट मे बी इट विल हेल्प यू आउट इन द लेटर स्टेज। बेस क्वांटिटीज होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, एंड कुछ ज्योमेट्रिकल होती हैं। एंड उनको ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर वो आते हैं जिनके यूनिट्स ना तो बेस क्वांटिटीज में आ रहे होते हैं, ना ही जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज के आ रहे होते हैं। ये दो सेपरेट इनको किया होता है, उसमें आती हैं दो ही एंगल्स आते हैं, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। मे बी आप इसी ग्रेड के अंदर आगे जाके इन एंगल्स को पढ़ोगे। रेडियन तो आपने मे बी मैथ्स में पढ़ा भी होगा, थीटा इज इक्वल टू ऐसे यस हो सर, रहा पढ़ा होगा। था। स्टेरेडियन जो है वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है, रेडियन जो है वो 1 डायमेंशनल एंगल होता है। I could even hold on. Let me open the uh, book because I am forgetting the exact heading of that. कि उन angles का वो पूरा कौन swing physical quantities जो है ना, जो इंटर सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। बेस यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिनमें रेडियन और स्टेरेडियन ने आपको बता दिया था कि एक 2 डायमेंशनल होता है, एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है हमारे पास। एंड देन कम्स द ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव यूनिट्स हमारे पास आते हैं। बाकी जो डायमेंशन के अंदर मैं आपको 3 पॉइंट्स बता रहा था ना, दैट वाज कि चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ड्राइविंग अ पॉसिबल फॉर्मूला। जैसे उन्होंने यहाँ पे टाइम और लेंथ का कैलकुलेट करके दिया हुआ, और यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज डिस्कस की हुई है। Success of this method of driving a decision for physical depends on the correct guessing of the various factors which the physical quantities depend upon. हम again उसके अंदर if there is going to come any trigonometric equation जैसे cos sin theta और tan theta अगर equation में आ रहा है, आगे जाके आप vectors and scalar quantities पढ़ोगे, so you'll get to know कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जाते हैं तो जो स्केलर क्वांटिटीज आती हैं नॉर्मली उनके साथ कॉज ऑफ थीटा लगता है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके साथ साइन ऑफ थीटा आके अटैच होता है। तो डायमेंशन हमें उन चीज़ों के अंदर हेल्प आउट नहीं कर सकते। बेसिकली वो इसी की बात कर रहा था कि डायमेंशनलेस की सर्टेन लिमिटेशंस हैं जिनको हम लोग जो है सरपास नहीं कर सकते। हम कंप्लीटली डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते फॉर एनीथिंग टू बी कैलकुलेटेड। आई विल गिव यू a few questions as well जिनमें हम डायमेंशंस को अप्लाई करके जो प्रिसियन बेसिकली जो है it deals with the least count of the operators. It deals with the least count of the operators. If we talk about vernier calipers versus screw gauge from the 9th grade, which would be more precise? Screw gauge. If screw gauge, why is that? Because precision deals with the least count of the operators. Whereas जो accuracies होती हैं, accuracy deals with the percentage of frictional uncertainty, which is the next topic actually, जिसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे भी। Accuracy depends upon the fractional or percentage uncertainty. अब प्रिसिजन वर्सेस एक्यूरेसी के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि मोर प्रीसाइज लेस एक्यूरेट। अगर हम एक्यूरेसी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो प्रिसिजन हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी।
एक्यूरेसी को समझने के लिए हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी स्लैश परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, वो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। बट अगर हम एक पिक्टोरियली डिस्कस करें कि प्रिसियन बेसिकली डील करता है इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जैसे हम लोग लेते थे ना एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम हम लोगों ने रिपीट किया, उसका एवरेज लिया और अपना आंसर नोट करते थे फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो ये चार डायग्राम्स हैं। ये जो है हमारे पास both precise and accurate है, because प्रिसियन, पहले मैं बताता हूँ प्रिसियन होता क्या है। if all the readings are close to each other but far away from the actual value, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल वैल्यू इज 2.7, ठीक है, और हमारे आंसर जो आए वो आए 2.1, 2.2, 2.12, 2.22। Now all these values are close to each other, but they are not close to actual value. Such readings are known as precise reading. Whereas accurate readings जो होते हैं, if all the values are close to actual value, but further apart from each other. अब इस डायग्राम के अंदर ये ना तो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ऑल दीज रीडिंग्स आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर और एक्चुअल वैल्यू से भी दूर है। तो सच रीडिंग्स आर नोन एज, अब ये देखो, ये सारी वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर है बट एक्चुअल वैल्यू से काफी दूर है, तो ये प्रिसाइज तो होंगी बट एक्यूरेट नहीं होंगी। अब दीज वैल्यूज आर close to the actual value but they are separated from each other, तो ये more accurate but less precise होंगे। Do you understand the meaning difference between the precision and accuracy? यस सर, आ गया। ये डायग्राम से बड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था। बाकी प्रिसियन को यहाँ पर उन्होंने इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन डिस्कस किया हुआ है कि प्रिसियन रेफर्स टू, precision refers to the closeness of measured value to each other, while accuracy refers to the closeness of measured value to a standard or true value. यहाँ पे उन्होंने वो बात तो नहीं लिखी हुई कि बेसिकली लीस्ट काउंट से एसोसिएटेड होती है। प्रिसियन is measurement of the same physical quantity agree with each other. Accuracy is measurement of the same physical quantity agree with the standard or true values. कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक थर्मोमीटर डिजाइन किया, थर्मोमीटर को डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस थर्मोमीटर होगा, तो ये तमाम चीजें उस मीनिंग में बात हो रही है। ये आगे लिखा हुआ, सॉरी, the precision of a measurement is associated with the least count of the measuring apparatus. Smaller the least count of the measuring instrument, greater will be its precision. And precision is indicated by absolute uncertainty. Accuracy is indicated by the fractional or percentage uncertainty. Smaller the magnitude or fractional uncertainty. अब uncertainties हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक वही जो यहाँ पे लिखी हुई है absolute uncertainty, और एक हमारे पास क्या होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर हम उसको ऐड करते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बेसिकली कैलकुलेट की जाती है से पहले मैं एक रीडिंग लिखता हूँ। मैंने वर्नियर कैलिपर से एक रीडिंग लिया और साथ में लिख दिया कि इसमें 0.1% की इनएक्यूरेसी आ सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। दिस 0.1 इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कि पॉसिबल एरर कितना आ सकता है, +0.1 या -0.1 का। वेरएज जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड दिस कैलकुलेटेड एज लीस्ट काउंट, दिस इज द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय द रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100. Do you understand the difference between the absolute uncertainty and the fractional uncertainty? यस सर।
अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटीज को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। एरर के अंदर हमारे पास एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? एरर इज कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब एरर अराइज किसकी वजह से हो सकते हैं? नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, एरर इन द apparatus and inappropriate method or technique using it। एरर्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से एरर होता है? पर्सनल एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है। पर्सनल एरर एज द नेम इंडिकेट्स के ह्यूमन एरर हमारे पास जो होता है ये पर्सनल इनएक्सपीरियंस है फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, तो पर्सनल एरर के अंदर आएगा। वेयर एज जो क्या कहते हैं सिस्टमैटिक एरर जो है वो ऑपरेटर्स का एरर होता है। और रैंडम एरर बेसिकली होता है कि अगर हम एक ही रीडिंग को मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट करें और एवरी टाइम वी आर गेटिंग अ डिफरेंट आंसर, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रैंडम एरर का नाम देते हैं। अब फर्स्ट एरर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? ऑब्वियसली विद मोर एक्सपीरियंस पर्सन। सिस्टमैटिक एरर को कैसे सेट किया जा सकता है? बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द जीरो एरर। यू रिमेंबर ना जीरो एरर आपने वर्नियर एंड कैलिपर्स एंड स्क्रू गेजेस में किए थे। यस सर। ठीक है, तो उस सिस्टमैटिक एरर को जीरो एरर्स के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, एक्यूरेसीज लाई जा सकती हैं। वेयरएज जो रैंडम एरर होता है उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गेस हाउ कैन वी करेक्ट द रैंडम एरर? टाइम पीरियड्स कैलकुलेट किए थे नॉट 9th श्योर और सर। 10th के अंदर। क्या जी सर? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट किया था 9th और 10th, 10th के यस 9th सर। 10th के एक्सपेरिमेंट्स में आप लोगों ने किया होगा। यस सर किया था। यू मेजर द टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस। फर्स्ट आपके पास 20 पॉइंट समथिंग आ रहा था, दोबारा आपने रीडिंग लिया तो अब 20.2 आ रहा था, फिर आपने रीडिंग लिया तो अब 20.3 एंड सो ऑन। तो यस ये सर। तमाम चीजें जो है ये इसको आप क्या नाम देते हो? रैंडम एरर का। आपने रैंडम इसको एरर। करेक्ट कैसे किया था? सर एवरेज लिया था। एवरेज, ठीक है। तो रैंडम एरर को किस तरह करेक्ट किया जाता है? बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द रीडिंग। ठीक हो गया? ठीक है सर। बाकी ये उन्होंने वही वाले पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि इफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें 0.1 इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। whereas फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0.1 डिवाइड बाय 2 किया तो 0.05 आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो 5%। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में वैसे ही है कि आपने बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। या आगे उन्होंने ये अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन है। The quantitative measurement of variability in the data. All measurements have a degree of uncertainty. This is caused by two factors: the limitation of the measuring instrument and the skill of the experimenter making the. Absolute uncertainty is equals to the least count of the measuring apparatus, whereas fractional uncertainty जो होती है हमारे पास वो least count divided by the reading divided multiply by 100, अगर आप परसेंटेज के ऊपर चला रहे हो। ओके, so the rules that we study for uncertainties, as I just said to you, depends upon के हम which kind of a calculations we are doing. There are five rules. Number one, uh, maybe शायद headings यहाँ पे दी होंगी। हाँ, let's go review the headings and then उसके ऊपर काम करते हैं। पहला rule है, if the calculations that we're dealing with are addition of sum or subtraction, if the calculations that we're going to do requires multiplications and division, if anyone has power in the quantity, and if the quantities which we are calculating have average values in them, and in the last अगर टाइम की कोई अनसर्टेनिटी हमारे पास आ रही है, you could see here जब हम when we are dealing with the quantities जिसके अंदर हम लोगों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, सो उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो सिंपली क्या हो जाती हैं? ऐड अप हो जाती है। ठीक है,
वेदर वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, दोनों केस के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो ऐड होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 24 एंड 30 को ऐड कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, इनका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 24 प्लस 30 का आंसर क्या आ जाएगा, 54, और उनकी 54। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर इवन हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं 30 माइनस 24, तो 6 अगेन उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है उन्होंने क्या होना है, ऐड अप होना है। इसमें हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। बट अगर हम लोग डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं, तो हम लोगों को उस केस सिनेरियो के अंदर जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, पहले हमें उसमें उसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एडिशन होती है वैल्यू। आर एडेड, वैल्यूज सब्ट्रैक्ट या वो ऐड हो रही हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ने हमेशा जो है वो ऐड होना है, ठीक है, आर एडेड। वेयर एज जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जाते हैं, तो उनकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है वो add होती हैं। ठीक है, अब परसेंटेज एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इन्हीं को ले लेते हैं, ठीक है, x इज 24.0 प्लस माइनस 0.1 एंड y इज 30.0 प्लस माइनस 0.1। अब इनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज कैसे कैलकुलेट होंगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 0.1 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। इनका आंसर देखो क्या आ रहा है, यस सर। 0.1 divided by 24 and 0.1 divided by 30। हाँ पहले का सर 0.41 आ रहा है। अरे 0.41% आ गया, या 0. दैट से 0.42 कर लेते हैं हम, यस एंड सर। 0.1 divided by 30 multiplied by 100 is giving us 0.33%। 0.33%। एज आई टोल्ड यू कि इनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 0.42 प्लस 0.33 added together will give you 0.753। तो हम इसको 0.75% लिख देते हैं, ठीक है, इसको हमने साइड पे नोट कर लेना। अब क्या करना है, जो इनकी कैलकुलेशंस आएंगी, फॉर एग्जांपल हमने y डिवाइडेड बाय x करना है या x डिवाइडेड बाय y करना है, दोनों केसेस में हमारी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो एडेड ही ठीक। रहेंगी, वो हम साइड पे नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम x डिवाइडेड बाय y करते हैं तो 24 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा, और अगर हम y डिवाइडेड बाय x करते हैं 30 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 30 इज गिविंग मी 0.8। 0.8 and 30 divided by 24 is giving me 1.25। 1.25, ठीक है। अब let me take x over y plus minus उनकी अनसर्टेनिटी, ठीक हो गया। तो 0.8 प्लस माइनस 0.75% ऑफ दिस रीडिंग लेना है आपने, ठीक है। तो 0.8 का 0.75% कितना बनेगा, would be हेलो 6 into 10 raised per minus 3। तो it would be 0.8 plus minus 0.006, जो भी हमारे पास 7 यूनिट है वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सर ये समझ नहीं आई ये वाला पॉइंट मुझे। जो आपका डिवाइड करके आंसर आएगा
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या Yes, डिवाइड sir. करके आपका जो भी आंसर आया और आपने जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी उसका उतना परसेंट ले लेना है। दैट इज मेरा डिवाइड करके आंसर क्या आया था 0.8, और आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी निकली थी 0.75। तो 0.8 टाइम्स Yes, sir. 0.75% कर लेंगे तो वो हमारे पास उसकी अनसर्टेनिटी होगी रीडिंग क्या। ठीक ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ठीक गिव है यू अनदर एग्जाम्पल। अब आप यू प्रिपेयर एवरीथिंग एट योर एंड। V is equals to 5.2 plus minus 0.1 volts and current is 0.84 plus minus 0.05 एम्पेयर। सबसे पहला स्टेप क्या होना है, हमने इन दोनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल लेनी। 0.1 डिवाइड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.05 डिवाइड बाय 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर्स आएंगे पहले इसके? वाले सर 1.92 है। तो अप्रोक्सीमेटली 2% आ जाएगा। इसका क्या आ रहा है? 0. हमने राउंडेड फिगर्स लेनी होती है अनसर्टेनिटीज के अंदर, हम लोग पॉइंट्स अवॉइड ही करते हैं। नॉर्मली हमें जो वो क्वेश्चंस देगा उसमें भी पॉइंट्स में कम ही आंसर्स आएंगे। Yes, sir. इसका अप्रोक्सीमेटली 6% 5.95 निकल रहा है। approximately 6. ठीक है, अब Yes, इन sir. दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना बन गया 8%। मैंने ये साइड पे नोट कर लेना है। अब मैं करूंगा, मुझे निकालनी है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होती है? I और V मतलब कौन किससे डिवाइड होगा? इनका प्रोडक्ट होगा सर। V ओवर I के इक्वल होता है रेजिस्टेंस जो है। ठीक है, V और V की वैल्यू क्या यस निकल आई सर समझ गया। 5.2 एंड I की वैल्यू क्या थी 0.84। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6.19। अब मैंने क्या करना है, 6.19 का 8% ले लेना है। तो 6.19 का 8% मेरे पास निकल रहा है 0.5। तो 6.19 प्लस माइनस 0.5 ओहम्स। अब अगेन हमने सब चीजें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स या वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लिए हैं। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने अपना फाइनल आंसर नोट करना होता है जो हमारे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए होते हैं। अब हम देख सकते हैं वी की वैल्यू में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2, और इसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2। तो हमारा फाइनल आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इनटू 2 तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बन जाएगा 0.2 प्लस माइनस 6.2 0.5। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम अनसर्टेनिटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सर ये बाद में सर ये प्लस माइनस का आगे 0.5 किस तरह आ रहा है ये, जब यहाँ मेरा जो कंफ्यूजन हो रही है मुझे। जो डिवाइड करके जो मेरी कैलकुलेशंस का जो आंसर आया था उसका जो परसेंटेज लिया था वो उस उतना परसेंटेज लेना है। ओके सर। जैसे 5.2 डिवाइड बाई 0.84 का आंसर है 6.9। एब्सोल्यूट जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी था उसका आंसर क्या आया था मेरे पास, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटीज आर एडेड टुगेदर। ठीक है, यस सर। जैसे लेट्स डू अनदर वन, उसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जब पावर वाला आता है ना, पावर वाले के अंदर सिर्फ एक चीज होती है कि जिस क्वांटिटी की पावर आ रही होती है उसकी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू फाइंड यस सर। आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ अ सिलेंडर जो होता है वो पाई डी स्क्वायर एल ओवर 4 के इक्वल होता है। ठीक है, अब गौर से देखना, ये कौन सी कैटेगरी बन रही है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली या क्या कहते हैं प्लस माइनस वाली? हम्म। इक्वेशन से पता लग रहा है भाई कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है। यस सर डिवीजन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ठीक है, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों हो रही है। जी अब सर। डी की जो वैल्यू है वो उसने हमें दी हुई है 1.22 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एंड जो एल की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 5.35 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब गौर से देखना, यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 1.22 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर डी। एंड उसके लिए सिंबल ये लगाते हैं, जब हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं डेल्टा का लगा रहे होते हैं। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 0.01 इंटू 5.35 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। जी सर। अब 0.01 डिवाइडेड बाय 1.22 मल्टीप्लाई बाय 100 का आंसर आ रहा है मेरे पास 0.8%। और 0.01 डिवाइडेड बाय 5.3 का आंसर आ रहा है 0.2%। अब हमने क्या बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, ऐड होती हैं टोटल। ऐड अब होती हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, 1 होगा। डी का हमारे पास क्या था, स्केयर था। इफ यू फोकस ऑन दैट, डी का हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर था। तो हमने जो पावर होती है उसको उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो डी का स्केयर था, तो डी की अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 1.6 प्लस 0.2, ये क्या बन गया 1.8%। ये मेरे पास आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई डी स्केयर इंटू एल डिवाइडेड बाय 4। पाई इंटू डी की वैल्यू क्या थी 1.22, एल की वैल्यू क्या थी 5.35 डिवाइडेड बाय 4। By putting into calculator, I'm getting 6.2509079 सेंटीमीटर क्यूब। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने आंसर को नोट करेंगे हम लोग। हमारे पास दोनों क्वांटिटीज के अंदर सर कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तीन तीन। 3 इक्वल है नंबर सर। ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर भी हमारा कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक नोट होगा, 3 सिग्निफिकेंट 3 तक फिगर्स होगा। तक। तो इसको ये बन जाएगा 6.25। अब एब्सोल्यूट 6.25। अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी निकली थी, एब्सोल्यूट कह रहा हूँ, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी कितनी निकली थी 1.8%। 1.8%। तो हम 6.25 का 1.8% ले लेंगे। तो 6.25 का 1.8% ले लें तो आंसर आ रहा है 0.1, और साथ में उसका यूनिट आ गया सेंटीमीटर क्यूब। आपका जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा और जो आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का टोटल आंसर आया है, उतना परसेंटेज लेना है अपने फाइनल आंसर का और उसको नोट करना है अपनी जगह। ठीक है डू सर। यू गेट इट नाउ। या डू। एक्चुअली आ रहा है 0.1125। तो चूंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में थी, सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर तक थी, तो 0.11 को राउंड ऑफ करोगे तो वो 0.1 ही रह जाएगा। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी पॉइंट आ जाता है कि अपना फाइनल आंसर हम उस डिजिट तक नोट करते हैं जितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के मिनिमम दिए हुए होते हैं। आर वी क्लियर। यस सर। अब जो चौथी कैटेगरी है कि अगर हमारे पास एवरेज वैल्यूज आ रही हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है। एवरेज वैल्यूज को मैं यहीं से रेफर कर लेता हूँ। उसमें सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि उन्होंने जो आपको एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, पहले आप उन सब का एवरेज का आंसर निकाल लो। एवरेज तो पता है ना कैसे निकालते हैं, सारों को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल यस नंबर सर। कर देते हैं। ठीक है, तो रेडियसेस उन्होंने दिए हुए जी हैं, सर। उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दिया, आई गॉट 1.51। अब इस आंसर का हर वैल्यू से क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। 1.51 माइनस 1.50 क्या आ जाएगा, 0.01। 1.51 माइनस 0.51 तो 0 आ जाएगा। 0। 1.51 माइनस 1.52 का 0.01। अब हम इन सबको ऐड करेंगे और उसका एवरेज लेंगे, वो मेरी अनसर्टेनिटी होगी इस रीडिंग की। दोबारा सुन लो, जो रीडिंग्स दी हुई है उनका एवरेज लेना है, उसका जो आंसर आएगा उसका उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ईच रीडिंग और उसकी अनसर्टेनिटी नोट कर लेनी है। ठीक हो गया, सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आ गया 0.01, 0,
एंड 0.01। अब मैं इन एवरेज वैल्यूज को क्या करूंगा, इन अनसर्टेनिटीज का एवरेज लूंगा और जो आंसर आएगा दैट वुड बी माय अनसर्टेनिटी। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल एज वेल, उसको भी सॉल्व करना, देन उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली टाइम के अंदर भी हम लोगों ने इसी तरीके से करना होता है कि टाइम के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले, आपको तो पता है टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों यस ने सर। क्या करना है कि टाइम पीरियड निकाल लेना है, जिस तरह निकालते हैं उसकी अनसर्टेनिटी ऐसे निकाली जाती है कि उस ऑपरेटर्स की लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अगर उस ऑपरेटर्स की लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल 0.1 है और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 30 है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू से। जैसे उन्होंने यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू हमारे पास, टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस कितना था, 35.2। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने थे, 20। तो पहले तो हमने टाइम पीरियड 20। निकाल लिया 35.2 डिवाइडेड बाय 20 करके। ठीक है, वो मेरा आंसर आ गया 1.76। अब टाइम की अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है कि लीस्ट काउंट ऑफ दैट apparatus डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब लीस्ट काउंट ऑफ दैट apparatus उसने दिया हुआ है 0.1। ठीक है, बाकी एक जो यस जनरल सर। वैल्यूज होती है ना, जो आपने वर्निंग कैलिपर, स्क्रू गेज की पढ़ी हुई है, और टाइम स्टॉप वॉच की जो जनरल वैल्यूज पढ़ी हुई है, बेसिकली हम उन्हीं को ही कंसिडर भी कर सकते हैं अपनी वैल्यूज के अंदर। हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो 0.01 सेकंड तक एक्यूरेट होती है, और जो एनालॉग स्टॉप वॉच होती है वो 0.1 सेकंड तक एक्यूरेट होती है। तो बेसिक आप उन वैल्यूज को भी ले सकते हो। तो टाइम की अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की, 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, वो क्या आ गया, 0.005। तो फाइनल रीडिंग क्या नोट करेंगे, टाइम प्लस 0.05 नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ओके, यस सर। लकीली दे हैव गिवन अस 2 एग्जांपल्स एज वेल, जिसमें डिवीएन और जो पावर की वैल्यूज हैं वो डिस्कस हो रही हैं। तो अब देखो यहाँ पे कि वोल्टेज की वैल्यूज ने क्या दी हुई है, 7.3 एंड 0.01 एंड 2.73 एंड, लेट मी टेक यू टू another section। ये लो, अब मुझे बताओ अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। वी की निकालेंगी कैसे, 0.1 डिवाइड बाय 7.3 मल्टीप्लाई बाय जीरो 100। और आई सेवन की पॉइंट कैसे थ्री निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 0.51 सर जीरो डिवाइडेड, पॉइंट सॉरी, जीरो फाइव जीरो वन फाइव वन डिवाइडेड बाय 2.73 051 होगा सर। मल्टीप्लाई बाय 100। इनके देखो आंसर्स मल्टीप्लाई क्या बाय आ रहे 100। हैं। 0.1 डिवाइडेड बाय 7.3 0.1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 7.3 is 1.369, मल्टीप्लाइड बाय 100 1.36। 1.369% बन रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें हमारे पास, जस्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एक ही है सर। 1.4 है, परसेंट बनता है, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर पे 1% ही बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, यस सर। 0.51 डिवाइड बाय 0.051 डिवाइडेड बाय 2.73 multiply by 100 is giving us 1.868%। 1.868। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या बन जाएगा, 2%। 2%। यस सर। बल्कि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है ना हमारे पास, लेकिन हमने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, तो हम उसी को नोट करेंगे। टोटल कैलकुलेशन में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है हम वो नोट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी बन गई है, 3%। 3 होगी वो सर। हमने साइड पे नोट कर लिया। आर किसके इक्वल होता है, वी ओवर आई के। वी की वैल्यू क्या है, 7.3, और आई की वैल्यू क्या है, 2.73। 7.3 डिवाइडेड बाय 2.73 is giving us 2.673। 2.673। राउंडेड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर क्या बन जाएगा, 2.7। 2.7
ओहम्स प्लस माइनस 3%। तो इसका 2.7 का 3% ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास 0.080। तो 2.7 प्लस माइनस 0.080। तो इसको 2.7 प्लस माइनस 0.8 लिख देंगे और सिग्निफिकेंट फिगर को अकाउंट में हमने रखना है। लेट्स गो बैक एंड सी उन्होंने क्या आंसर निकाला है। 0.08 तक वही जो हमने लिखा। और ये देखो 2.7 यस सर। तक राउंड ऑफ। इसको देखो 1%, 2%, एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड वो सब चीजें फॉलो अप कीजिए। ओके, ठीक है सर। नाउ calculate the answer for this one. If radius of a circle disk is measured as 2.25 centimeter with uncertainty of 0.01, find the surface area with uncertainty in it. Surface area का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है फॉर अ डिस्क? पाई आर स्क्वायर मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। नाउ यू हैव ओनली 2 minutes टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है? सर वही परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे इसकी। क्या आंसर है? तो सर एक मिनट सर। 0.1 2.25 100 0.44 रहेगा। तो डबल और फोर को 0.4% ही लिखेंगे। ठीक है, 0.4 कर देंगे सर। यस सर। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि इसकी पावर क्या है 2। इसको तो ये क्या मल्टीप्लाई बन बाय 2 जाएगा करेंगे 0.8%। 0.8। पाई आर स्क्वायर करो तो क्या आंसर आता है? पाई इंटू आर की वैल्यू क्या बन रही है 2.25 स्क्वायर। तो पाई इंटू 2.25 स्क्वायर इज 15.90। 15.90। उसका परसेंटेज ले लेंगे 0.8%। इज ये सर 0.127। इसकी कैलकुलेट कैसे करते हैं कि 0.8% ऑफ 225.90? 15.90 मल्टीप्लाई बाय 0.8%। इतना सिंपल। जी, बस उसका परसेंटेज ले लेना ना उतना। यस सर। अच्छा, अब ये मैंने रॉ आंसर लिखा है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक अपना आंसर नोट करेंगे? आर का और एक मिनट अनसर्टेनिटी का। सर। आर सर 3 तक होगा। तो क्या बन जाएगा और 15.9 प्लस 15.9 और माइनस इसका और सर एक 0.1। साथ में यूनिट आ जाएगा 1 होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर हमारे पास क्या आ गया था? दैट्स हाउ वी डू द अनसर्टेनिटी। ओके, यस सर। नाउ let's go and do one more question for let me write down. The readings अभी आप एवरेज का कैलकुलेट करो। Average is 1.20, 1.22. Let me neatly write it down. 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 and 1. Average uncertainty कैलकुलेट करें इसकी। हरी अब यस सर।
जब हमने इन सब क्वांटिटीज का एवरेज लिया तो क्या है आंसर? 0.0116। नहीं नहीं, इनका जब लिया तो क्या आंसर है? 1.21 है सर। 1.21। इनका डिफरेंस लिया तो 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.01 एंड 0.0 डिवाइडेड बाय 6। इसका भी आंसर क्या आ गया? 0.01। फाइनल आंसर क्या सर है? जीरो पॉइंट 1.21 प्लस 0.011 आया ना, तो वन सिग्निफिकेंट तक नोट करना है, तो 0.01 ही रह जाएगा। यस सर। और ये सब क्वांटिटी सेंटीमीटर्स में थी तो सेंटीमीटर आ जाएगा। यस सर। नाउ टाइम पीरियड का कैलकुलेट करो। टाइम पीरियड फॉर 30 oscillation is 54.6 oscillations are 30 and time is 45.6 and least count of the apparatus is 0.1 second. Now calculate the error. What did you get? 54.6 divided by 30 करके क्या आंसर आया टाइम पीरियड का? 1.82। एंड 0.1 डिवाइडेड बाय 30 करके क्या आंसर आया? सर 0.003 आ ये गया। करके 0.00। 1.82 plus minus 0.003 second as the calculations in the value. अब एक रह गया लास्ट वन। Volume for the cylinder is given as 4/3 pi r cube, where r has a value of 2.25 plus minus 0.01 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रैक्शन 70 कैलकुलेट करेंगे। 0.01 divided by 2.25 multiplied by 100, that's will give us 0.4%। और उसकी पावर कितना था? क्यूब। 0.4% क्यूब था टाइम्स तो क्या 3 हो से जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। 3। तो ये 1.2% हो गया। इसको साइड पे नोट कर लेते हैं। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। 2.25 का 4/3 pi r cube is given as 47.689। इसका 1.2% लें तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.6। 47.689 multiplied by 1.2%, 0.572268, 0.572268। इसको राउंड ऑफ करेंगे वन सिग्निफिकेंट फिगर पे तो क्या बन जाएगा? 0.6। और इसको कितने सिग्निफिकेंट 0.6 फिगर होगा। तक राउंड ऑफ करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये बन जाएगा 47.7 प्लस माइनस 0.6 centimeter cube. So that's how we deal with the power questions. So we are done with the uncertainties. That officially puts an end to this chapter. Let me know if you have any questions from this topic, from the whole chapter.